Hello everyone, welcome back you in this physics lecture. Today we are going to study about electric dipole. So here we will know about the meaning of electric dipole and we will discuss about that its electric field. So first is to understand over here what is the meaning of this dipole. So we are having over here di means to say that there is two and pole is used for that charge. As magnet is having two pole, so similar over here we are taking that two charges. Okay, what there we are saying that these two charges they are equal and opposite, equal and opposite, separated by a small gap, separated by a small distance. Okay, so over here these two equal and opposite charges we are going to call them as dipole. So they are separated by a distance. Okay, so in the diagram let us look that how we can have this dipole. Here I'm having it is negative charge, and at a distance from it we are taking this one another charge which is plus q. So we will find that these both are, one it is negative, another is positive. So both are what, they are equal and opposite. Okay, and what is happening over there, they are separated by a small gap. Okay, so here we are going to take that the separation between the two charges y कन्वेंशन इट इज सेड टू बी 2l. ठीक है, तो इसलिए हम 2x 2p 2d मतलब कि जब भी हमने जो सेपरेशन बिटवीन द डायपोल लेनी है दैट इट इज 2l y कन्वेंशन. ओके, सो हेयर इट इज द मिड ऑफ द डायपोल. Okay, so let it be that O point. So what is happening over here, it is at what distance from this charge, it is L, and in this positive charge from this mid of the dipole, it is said to be L over there. Now student, you will check out one thing over here. This separation between the two charges which is written over here 2l, we are going to call it is as dipole length. Okay, so what is this dipole length? So what is dipole length over here, 2l, the separation between the two charges, equal and opposite charges. So it is said to be dipole length. Okay, so how much is the net charge on a dipole? If I have to find out the net charge on a dipole, so we will find that one it is minus q and another is plus q. मीन्स टू से आप क्या करें, इस डायपोल को अगर एक बॉक्स में डाल दोगे तो उस बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज क्या होगा. सो टोटल चार्ज व्हाट यू विल गेट ओवर देयर, इट इज जीरो. ठीक है, तो इसलिए नेट जो चार्ज है डायपोल का वो जीरो होता है. वट इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो नेट चार्ज है डायपोल का वो जीरो हो रहा है. ठीक है, सो ओवर हेयर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ. ठीक है, हम क्या करना जा रहे हैं, यहाँ पर जो डायपोल है उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने जा रहे हैं. ठीक है, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल. सो स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल इज कैलकुलेटेड बाय इट्स डायपोल मोमेंट. तो जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है उससे स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, जिसको हम पी से डिनोट करने वाले हैं. ठीक है, तो इस डायपोल मोमेंट से हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो वी आर सेइंग ओवर हियर स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल इज डिटरमाइंड by the dipole moment. Okay, so how do we find out this dipole moment? तो dipole moment कैसे find out की जाती है? So for this purpose student, as we are known कि हमारे पास एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है. ठीक है, so both are separated by a distance, small gap. This is dipole length over there. ठीक है, so whenever we have to find out this dipole moment, so dipole moment it is the product of, so you have to take product of either charge because both charges are equal, but over there one is positive, one is a negative. So you can take that this dipole moment, what it will be, it will be product of either charge. कोई एक सा चार्ज आपने यूज करना है and the separation between them, this dipole length. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू से दिस वन, इट इज एज डायपोल मोमेंट. तो डायपोल मोमेंट क्या होगी हमारे पास, q इंटू 2l, दिस इज सेड टू बी डायपोल मोमेंट. ओके, सो ओवर हेयर दिस डायपोल मोमेंट
that in scalar form I have written this one. Scalar form is this one. But if in vector form, because dipole moment is a vector quantity, so in vector form how can I write this one? So in vector form this can be written as p vector is equal to q into 2l. So length is taken to be positive, but in what direction this is? What will be the direction of this dipole length? So we are taking, this is from direction, so that I am taking over here direction from negative charge to positive. Okay, so in this direction that dipole moment is taken, negative charge to positive. Okay, so this we are having the direction of dipole moment. Okay, and if we have to say about the unit, then what the unit we should to use over here? So student, regarding to the unit, you can check that charge is in coulomb and length is in meter. So unit that will be coulomb meter. So over there coulomb meter we can write. Now the next thing, if we have to write its dimensional formula, so that dimensional formula can also be written. So generally over here its dimensional formula, it is m0 l की power 1 t 1 a की power 1. Okay, so this is that its dimensional formula. So thus over here we come to know about that how we can find out the strength of a dipole. Okay, so this can be determined with the help of its dipole moment. Now let us suppose over here this numerical student. So we are saying that I'm having here, it is the origin, and there a charge is at a distance from it. So here it is a positive charge and its position coordinate that it is in y-axis it is 0 and a, while that of second which I have considered over here on x-axis there is another positive charge, its position coordinate are that of a 0, and there is minus of 2q charge at the origin. Here it is origin. Okay, so its coordinate 0 0. So we have to find out the resultant dipole moment. Okay, so for this student, for the sake of the solution, what we need to do over here, for our simplification, क्योंकि हमारे पास डायपोल में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू कंसीडर ओवर हेयर दैट दिस नेगेटिव 2q. तो ये जो नेगेटिव 2q है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू. ठीक है, वट एवर विल बी दैट minus of 2q, and over here it is that of q which is placed at this 0 comma a. It is the position of this one, and here is that another one which is at 0 a comma 0. Now you will find over there q minus q, it is one of the dipole, that of minus q, and it is q, it is the another dipole. So this dipole, its dipole moment is in which direction? It will be in upward direction. Okay, minus to positive charge, and over here this dipole moment, it will be to which direction? It will be toward right side direction. Now both you will find out that all charges are same magnitude, सब की वैल्यू एक बराबर ही है. ठीक है, तो इसलिए जो डायपोल मोमेंट होगी वो भी क्या हुई, एक बराबर. बट यू विल फाइंड दैट बोथ ऑफ देम दे आर एट एन एंगल. ये क्या हो गया हमारे पास, एक एंगल के ऊपर हो गए. ठीक है, सो देयरफॉर हाउ मच इज दैट रिजल्टेंट? तो दो साइड उस रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की हमारे पास दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका जो डायगोनल होगा दैट विल गिव अस दिस रिजल्टेंट. तो इसलिए हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस वन. तो ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमारे पास बन जाएगा, इट इज रिजल्टेंट. Okay, so therefore if we are supposing that one both of them they are going to act at 90 degree, so then resultant dipole moment PR, it will be square root of first का square plus second का square plus double of first one second one and cos of the angle. So they are at a 90 degree to each other, and we are getting that what it will be over there, it will come out to be that of p is what. So p square plus p square, it is 2p square, and here it is going to be 0. So finally we are getting it is p under 2. Okay, this is that resultant moment.
ओके, एंड हाउ मच इज पी? सो पी वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर, किसी एक से, मतलब कि इसकी डायपोल मोमेंट क्या लिखते हैं आप? सो डायपोल मोमेंट हमारे पास पी क्या आ जाती, दैट सिंपली विल बी रिटन ओवर देयर, इट इज़ ईदर चार्ज, कोई एक सा चार्ज और उनके बीच की सेपरेशन, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी थी? ए थी, ठीक है। तो सो देयरफॉर इट वाज व्हाट? पी इक्वल टू क्यू ए। इस वाले की भी क्या आएगी? इस वाले की भी वही आएगी, क्यू ए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्टेंट डायपोल है दैट इट विल बी, वी आर गेटिंग क्यू ए, that it is over there q a under 2, we can use this one. Okay, so thus we are getting that this is our answer. Okay, so this we are having that how to find out the resultant dipole moment. Now student, over here if I take another question, let us to take one more question which is regarding to this dipole moment. So here that I am supposing this question, it is second one. There is a hydrogen atom and inside a hydrogen atom there is a proton and इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास उस हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होते हैं? चार्जेस तो सेम ही होते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या होंगे? जो ये क्या करेगा, एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सो इफ इट इज़ गोइंग टू बिहेव जस्ट लाइक अ डायपोल, सो दे हैव सेड दैट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो ये एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर हैं बाय that 5.29 into 10 की पावर माइनस ऑफ 11 मीटर। ओके, सो दिस वी आर हैविंग दैट सेपरेशन। सो हाउ मच इज दिस डायपोल मोमेंट? फाइंड डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास डायपोल मोमेंट इट विल बी P इक्वल टू ईदर चार्ज इंटू दैट सेपरेशन बिटवीन दम, Q इंटू 2L। नाउ विच इज ओवर देयर चार्ज हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 19 होता है, एंड हाउ मच इज द सेपरेशन बिटवीन दैम? तो ये सेपरेशन जो है हमारे पास ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इट इज स्टैंडर्ड यूनिट में दी है, सो इट इज 5.29 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 11। सो दस वी कैन हैव अवर आंसर। सो यू हैव टू फाइंड दिस आंसर एंड गिव इन द कमेंट। ओके, तो आंसर फाइंड आउट करके कमेंट में बताना कि हमारे पास कितना होगा और यूनिट क्या यूज़ करने हैं आपने इसके। सो गिव मी दैट वन इन द कमेंट। नाउ नेक्स्ट दैट स्टूडेंट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हेयर वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ दैट डिस्कशन इज गोइंग ऑन, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ डायपोल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ डायपोल, ये हम दो पॉइंट के ऊपर, दो जगह के ऊपर फाइंड आउट करने वाले हैं। वन इट इज सेड टू बी एज एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दूसरा जो है हमारे पास दैट इट इज सेड टू बी इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, सो दीज आर टेकन टू बी ओवर देयर 2 points where we want to find out electric field intensity due to of this dipole, ठीक है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग फॉर दिस वन। अब इनकी मीनिंग क्या है, देयर आफ्टर वी कैन गो फॉर दिस कैलकुलेशन। ओके, सो एक्सियल पॉइंट के लिए हम पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए समझते हैं हम एक्सियल लाइन को। व्हाट इज दिस एक्सियल लाइन? ठीक है, सो एक्सियल लाइन इज व्हाट वी आर सेइंग ओवर देयर, इट इज अ लाइन विच ज्वाइंस द टू सेंटर्स ऑफ अ डायपोल। ये हमारे पास जैसे सेंटर है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? डायपोल, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइन जो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करके एक्सटेंड होती है दोनों तरफ, ठीक है। सो दिस लाइन इज सेड टू बी एक्सियल लाइन, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सियल लाइन? सो वी आर सेइंग ओवर देयर line joining the center, line joining centers of two charges forming an electric dipole, an electric dipole and extended ऑन ईदर साइड, ठीक है। तो मतलब कि ईदर साइड, किसी भी तरफ उसको एक्सटेंड कर दिया हमने ईदर साइड। सो दिस व्हाट वी आर सेइंग, दिस लाइन इज व्हाट एक्सियल लाइन,
ठीक है, एंड द पॉइंट ऑन दिस एक्सटेंडेड साइड, और जो पॉइंट हमारे पास इस एक्सटेंडेड साइड में आप चाहे इस तरफ लें या इस तरफ लें, जो एक्सटेंडेड साइड के ऊपर उस एक्सियल लाइन पर हम कोई भी पॉइंट मानेंगे, दिस पॉइंट इज सेड टू बी एक्सियल पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक एक्सियल पॉइंट होगा। ओके, सो आई होप सो दैट एक्सियल पॉइंट हमें समझ आया होगा कि हमारे पास जो एक्सटेंडेड लाइन है जो दो चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करती है, उस एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर हम जब कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, सो दिस पॉइंट इज सेड टू बी एक्सियल पॉइंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी आर टेकिंग ओवर हेयर स्टूडेंट, कि हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा thereafter. So for this student we are taking this second one concept, equatorial क्या है। ठीक है, so as I am having here it is negative charge and there it is a positive charge। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, डायपोल का, स्पेशली डायपोल की बात हो रही है। ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, दिस इज सेड टू बी मिड पॉइंट। ठीक है, सो दिस लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू देयर सेंटर, ये जो एक्सटेंडेड लाइन है जो इसके सेंटर से पास हो रही है उसको क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। ठीक है, एंड अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द मिड ऑफ डायपोल ऑन दिस एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, उस डायपोल के मिड से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। सो दिस लाइन इट इज सेड टू बी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर बात आई, इक्वेटोरियल पॉइंट को समझने के लिए हमने स्टार्ट किया है इक्वेटोरियल लाइन से। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन हमारे पास क्या बन रही है, इट इज सेड टू बी दैट लाइन, सो हेयर इट इज व्हाट, लाइन which is perpendicular to the axial line and passes through the center of the electric dipole लेंथ। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, एक्सियल लाइन के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कहाँ से शुरू होती है, उस डायपोल लेंथ के बिल्कुल मिडल से। ठीक है, एंड इफ वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट ऑन दिस इक्वेटोरियल लाइन, सो दिस इज सेड टू बी इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, दिस इज सेड टू बी इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, सो देयरफॉर इफ वी विल लुक ओवर देयर, अगर मैं बात करूँ इस इक्वेटोरियल पॉइंट से, सो दिस इज ये नेगेटिव चार्ज एंड दिस साइड इट इज पॉजिटिव चार्ज, सो बोथ आर एट अ सेम डिस्टेंस, दोनों क्या होते हैं, एक बराबर डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। ठीक है, सो दिस एंगल दैट वी आर गोइंग टू हैव सेम एंगल, तो ये हमारे पास सेम एंगल यहाँ पर बन जाते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाती है। तो जिससे ये जो एंगल है दोनों साइड ये आमने सामने के वो बराबर, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल बनती है। क्यों, क्योंकि ये मिड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। सो देयरफॉर वी कैन से ओवर हियर कि व्हाट इज दिस इक्वेटोरियल पॉइंट, अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल लेंथ। तो डायपोल लेंथ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट लाई करता है उसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सो होप सो यू कम टू नो अबाउट दैट what is this equatorial point. Now let us to find over here this electric field intensity due to of a dipole. So student, we are having now it is electric field intensity due to dipole at its axial point. Okay, so over here at its axial point we are going to find out this that of electric field intensity. So for this purpose student, I am supposing that here it is a negative charge, this is a negative charge, and here it is a positive charge. Initially we have to suppose this that there is equal and opposite charges. So here it is the midpoint of this one, so it is going to divide it into two equal parts. So here it is L and L to both side. Okay, now I have extended this line to both side, here I extended this line to both side. So therefore it is what, axial line we are supposing, and on this axial line we are supposing a point where we want to find out this electric field of the dipole. So this point I am giving it as the name. Okay, so here you have to suppose that there is
यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज आपको सपोज करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस पी पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसा पॉइंट बना, एक्सियल पॉइंट बना। क्यों? क्योंकि ये उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जो एक्सियल लाइन होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई एम सपोजिंग कि इस सेंटर ऑफ द जो डाइपोल है, इससे ये क्या हो जाती है हमारे पास, लेट इट बी एट आर डिस्टेंस। ये आर डिस्टेंस के ऊपर हुई, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस नेगेटिव चार्ज एंड दैट पॉइंट पी। तो नेगेटिव चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो वी विल फाइंड ओवर देयर। ये डिस्टेंस इतना तो आर है, ठीक है, और उससे नेक्स्ट क्या हो गया, एल, ठीक है। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, आर प्लस एल। ये किसके बीच का डिस्टेंस है, माइनस क्यू और पी के बीच का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एट व्हाट डिस्टेंस इज दिस क्यू चार्ज फ्रॉम पी, पी से कितना दूर हुआ। सो वी विल फाइंड ओवर देयर, ये सेंटर से कितना दूर था हमारे पास, आर डिस्टेंस पर था, और सेंटर से ये चार्ज कितने दूर है, एल डिस्टेंस पर। तो कितना ये डिस्टेंस रह जाएगा, तो आर से आप ये डिस्टेंस कम कर दोगे तो रह जाता है हमारे पास आर माइनस ऑफ एल, ठीक है। नाउ जस्ट टू चेक दैट वन, ये जो हमारे पास इसकी जस्ट आपने वन बाय वन अब पॉइंट चार्ज सपोज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस तरफ लग रही होगी, दैट इट विल बी, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए किस तरफ लगेगी, बाहर की तरफ लगेगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगी, बाहर की तरफ। और जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस तरफ होगी, पॉइंट पी के ऊपर, तो वो अंदर की तरफ, ये उसको अपनी तरफ खींचेगा तो इसलिए अंदर की तरफ इनवर्ड होगी, ठीक है। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लिख देता हूँ और ये जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, P के ऊपर एक फील्ड राइट साइड एक्ट कर रही है, एक फील्ड लेफ्ट साइड एक्ट कर रही है, ठीक है। तो नेट फील्ड क्या होगी, नेट फील्ड एट P, तो P के ऊपर नेट फील्ड मेरे पास क्या आई, सो दिस इज दैट नेट फील्ड एट एक्सियल, एक्सियल लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इट विल बी मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा। तो नाउ चेक ओवर देयर, विच वन विल बी ग्रेटर, E2 बड़ी होगी या E1 बड़ी होगी। सो यू विल फाइंड ओवर देयर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बोला था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस के जैसे जैसा बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। अब देखो P से कौन सा पॉइंट ज़्यादा दूर है, Q, माइनस क्यू ज़्यादा दूर है या प्लस क्यू ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है भाई इसमें सबसे जो दूर तो माइनस क्यू है, माइनस क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई वो तो E1 है, इसका मतलब E1 छोटी होगी और E2 बड़ी होगी, ठीक है। तो E2 किस तरफ लग रही है, राइट साइड लग रही है। तो हमारे पास ये जो आंसर है E2 माइनस E1, E2 बड़ी है E1 छोटी है, तो इसलिए हमारे पास राइट साइड की पॉजिटिव ले ली, लेफ्ट साइड की नेगेटिव आ गई, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब बात ये आ गई कि यहाँ पर E2 और E1 की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट फील्ड को निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर आई एम टेकिंग ओवर हियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट P, ठीक है, जिसको मैंने क्या लिखा, E1, क्या आ जाएगा फार्मूला, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये उससे कितना दूर है, ये उससे दूर है R प्लस एल डिस्टेंस के ऊपर, तो इसलिए लिख दिया हमने दैट इट इज के क्यू, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इसलिए साइन नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, के क्यू बाई R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, चेक इट आउट ओवर देयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बनी, उस E1 की बनती है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट के ऊपर है। नाउ वी आर टेकिंग ओवर हेयर दिस सेकेंड वन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास E2 है, ठीक है, दैट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट P, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी बनी एट P के ऊपर, तो दिस वन वी आर गेटिंग ओवर देयर, इट इज सेड टू बी E2 एंड दिस वी विल हैविंग के क्यू, उसका डिस्टेंस कितना, तो पॉजिटिव चार्ज P से कितना दूर है, सो जस्ट चेक इट ओवर देयर, इट इज R माइनस एल, ये इतना सा दूर है इससे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वी आर हैविंग, सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, सो वी आर गेटिंग दिस वन E2
E2 की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू, E1 की वैल्यू कितनी थी, आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। दिस वी आर हैविंग। नाउ व्हाट थिंग इज कॉमन इन दैम, के क्यू, के की वैल्यू याद रखना, के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसलिए के की वैल्यू है, तो के क्यू ऊपर से कॉमन है और बच गया आर माइनस एल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। दिस वी आर हैविंग। टेक द एलसीएम नाउ। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा दैट इट इज आर माइनस एल का स्क्वायर एंड आर प्लस एल का स्क्वायर। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, so if this will multiply over here, so it will become r plus l का square minus of r minus l का square, okay, this we are getting over there. Now we have to look over there, अगर हम इसको अब थोड़ा सा एक्सटेंड करें, क्या एक्सटेंड करना है, जस्ट टू चेक दिस वन। ये क्या बना, a प्लस बी का स्क्वायर, और ये क्या बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो ये वाला सिस्टम बन गया हमारे पास कुछ। तो इसलिए नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सपेंड दिस वन, सो वट इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl माइनस ओवर दे ए का स्क्वायर, सो नेगेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई करा ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर दैट इट इज माइनस ऑफ एल का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये क्या था a माइनस बी है ना, तो क्या देगा -2ab, और ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या बन जाएगा +2rl बन जाएगा, अपॉन में ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर दैट इट इज सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस वी आर गेटिंग ओवर हियर, ओके। सो जस्ट आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 4rl 2rl प्लस 2rl 4rl, ठीक है। सो दस आई एम गेटिंग ओवर हियर दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4rl अपॉन में दैट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज ओवर देयर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट एज वी आर नोन that q into 2l, what we said that one, it is dipole moment p, ठीक है। so thus I can have over here that of ये जो 4 है, 4 को मैंने 2 into 2 लिखा, तो 2 मेरे पास आगे आ गया, और उससे नेक्स्ट k, और q into 2l जो था उसको मैंने क्या लिख लिया, that q into 2l और outside r, so this way I have written this one, and finally I will check over there that it is 2kpr by r square minus l square का whole square. This is electric field at axial point. It is electric field at axial point, ठीक है। Now if I will, it is in the scalar form, ये scalar form में लिखी गई। अगर इन वेक्टर में लिखना है, इन वेक्टर तो क्या हो जाएगा, वेक्टर में आप वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वेक्टर होती है, ठीक है। इट इज इक्वल टू, अब चेकआउट ओवर देयर, जो मेरे पास इनिशियल डायग्राम थी, उस इनिशियल डायग्राम में डायपोल मोमेंट अगर मैं देखूं नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि किस तरफ थी डायपोल मोमेंट, टूवर्ड राइट, ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट है, राइट साइड। और पी के ऊपर जो फील्ड है वो भी किस तरफ, कौन सी वाली ज़्यादा थी, राइट साइड वाली ज़्यादा थी, तो दोनों ही किस तरफ लग रही हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, दैट इट इज डबल ऑफ के पी वेक्टर आर अपॉन में दैट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए ये टूवर्ड्स राइट साइड लग रही है, टूवर्ड्स राइट साइड, ये हमारे पास, तो जिस तरफ डायपोल मोमेंट है उसी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के ऊपर होती है, ठीक है। तो हमें याद रखना है ये वाला फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी किस तरफ फील्ड लग रही है, राइट साइड को लग रही है वहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ओवर देयर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये जो सेपरेशन है, ठीक है, जो सेपरेशन है जिसको हमने डायपोल बोला था, तो ये जो डायपोल लेंथ बोला था, ठीक है, तो ये जो डायपोल लेंथ होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है एक्चुअल में बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे स्पेशल केस में ले रहा हूँ मैं कि अगर एक्सियल पॉइंट हमारे पास लेंथ डायपोल लेंथ के कंपैरेबल बहुत दूर है, तो एट दैट टाइम आप क्या करोगे, एल वाली टर्म जो हमारे अभी फार्मूले में आई थी उसको आपने निगलेक्ट करना है, ठीक है। सो दस आई कैन राइट देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट व्हाट इट विल बी,
इट विल बी डबल ऑफ के पी आर अपॉन में जो हमारे पास आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर है, इसको आपने आर स्क्वेयर ही लिखना है फिर, ठीक है। सो दैट आई एम गेटिंग दैट इट इज आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। सो ओवर देयर एक आर ऊपर है, नीचे कितनी आर की पावर 4 है, तो एक पावर ये इसकी कट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा डबल ऑफ के पी बाई आर क्यू। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकाली जा सकती है ऑफ दैट डाइपोल, ठीक है। वट यू विल फाइंड ओवर देयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज के कंपेरेबल बहुत फास्टली डिक्रीज करती है, आर क्यूब, जबकि हमने पॉइंट चार्ज की क्या बोली थी, आर स्क्वायर बोला था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या होती है, मतलब कि बहुत ही फास्ट डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। सो दिस वी आर हैविंग दैट डेरिवेशन विच इज रिगार्डिंग टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज करोगे व्हेन दिस आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन एल, ठीक है। और अगर कंपेरेबल होंगे तो कंपेरेबल के लिए आपने ये वाला फार्मूला ही यूज़ करना है फॉर कंपेरेबल के लिए, ठीक है। जब आर और एल नियरेस्ट हों